مطلب نہیں ہے. چادریں چڑھے ان چادروں کو بیچ کر اللہ کے ولی کے نام پر غریبوں میں تقسیم کر دو, فقیروں میں تقسیم کر دو, غریب بچیوں کی شادیوں کا انتظام کر دو. مگر جہاں پر ایک چادر کو 1 کروڑ بار بیچا جاتا ہو, جہاں پر ایک چادر کو 1000 بار بیچا جاتا ہو, وہاں اس کا تصور مت کیجئے گا. اس لیے سلطان رضا کہنا چاہے گا یہاں تو ایماندار لوگ بیٹھے ہیں, آپ جو چڑھائیں گے غریبوں میں خرچ کر دیں گے, یتیموں میں خرچ کر دیں گے. مگر آپ جائیے جب اجمیر شریف, آپ جائیے جب ان بزرگوں کی بارگاہ میں 50 روپے کی پھولوں کی چادر لے لیجئے اور گلدستہ لے جا کر چڑھا دیجئے, فاتحہ پڑھیے, روئیے, گر گرائیے, ان بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں مانگیے, 450 روپے وہاں سے واپس لے کر آئیے اور آ کر یہاں کسی مدرسے میں چلے جائیے. ٹھنڈی کا زمانہ آ رہا ہے, دیکھیے کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے پرنسپل صاحب جس کے پاس اڑھنے کے لیے چادر نہیں ہو, پہننے کے لیے سویٹر نہیں ہو. کوئی ایسا تو بچہ نہیں ہے جس کے پاس پڑھنے کے لیے کاپی کتاب قلم نہیں ہو. حضرت یہ پیسہ دیجئے غریب نواز کے نام پر, اس غریب بچے کے لیے چادر خرید دیجئے گا, کسی غریب بچے کے لیے کاپی کتاب قلم خرید دیجئے گا. کوئی ایسی غریب بچی جس کے پاس سر ڈھکنے کے لیے دوپٹہ نہیں ہو, اسے دوپٹہ خرید کر دے دیجئے. جتنی تمہاری چادر سے غریب نواز خوش نہیں ہوں گے, اس سے زیادہ کسی یتیم بچی کے سر پہ چادر ڈال دو گے غریب نواز خوش ہو جائیں گے. کسی غریب بچے کو پڑھا لکھا دو گے غریب نواز خوش ہو جائیں گے. خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, لیکن آج ہمارے یہاں پوزیشن یہ ہے ماں باپ کو کبھی عید میں کپڑا بھی نہیں پہناتا, مزار شریف پہ جا کر 5000 کی چادریں چڑھاتا ہے. کبھی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ماں سے مصافحہ کر لے, کبھی توفیق نہیں ہوئی باپ کے جیب میں بھی چپکے سے کچھ ڈال دے. مگر میں کہتا ہوں سبحان اللہ, شاعروں کو دیتے ہیں دیجئے, خطیبوں کو دیتے ہیں دیجئے, پیرانے نظام سے مصافحہ کرتے ہیں کیجئے, مگر کبھی یہاں سے گھر جائیے اور کما کر لائیے تو کبھی ماں کے آنچل میں بھی ڈال دیجئے. کبھی چپکے سے باپ جو بڑا ضمیر کا زندہ ہوتا ہے, جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک تجھے کھلایا پلایا, ضرورت پڑی پیسے دیے, وہ باپ تیرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. رات کی تنہائی میں کبھی دیکھ لو تیرے باپ کے جیب میں پیسہ بھی ہے کہ نہیں ہے, چپکے سے پیسہ نکالو باپ کے جیب میں ڈال دو تاکہ تیرا باپ چائے کی ہوٹل پہ محتاج نہیں رہے. جس دن ہم نے ماں باپ کو محتاج بنانا چھوڑ دیا, انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے ہم بھی مختار ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہماری زندگی میں بھی خوشی عطا فرما دے گا. آج مارکیٹ میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے, پڑھی لکھی لڑکیاں کہتی ہیں میرے شوہر کی کمائی ہے, اس لیے یہ گاڑی میری ہے, یہ بنگلہ میرا ہے, یہ زمین میری ہے, یہ سب کچھ میرا ہے. مگر آؤ ذرا غور سے سنو, مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ہے, ایک نوجوان پہنچا ہے, یا رسول اللہ مرد کے اوپر پہلا حق کس کا ہے؟ کونین کے تاجدار فرماتے ہیں جاننا چاہتے ہو مرد کے اوپر پہلا حق کس کا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ بتایا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرد کے اوپر پہلا حق تمہاری ماں کا ہے. کس کا ہے؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے بول دے کس کا ہے, اور زور سے بولے ماں کا نام کس کا ہے؟ ماں کا. مرد کے اوپر پہلا حق ماں کا ہے. اتنا زور سے بولیے جا کے سویا ہو وہ بھی سیکھ جائے کہ میرے اوپر پہلا حق میری, اور زور سے بولے میری ماں کا. پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا؟ آقا نے کہا ماں کا. پھر تھوڑی دیر ٹھہر گئے, پھر پوچھا آقا پھر کس کا؟ آقا نے کہا تمہاری ماں کا. اب چوتھی بار پوچھتے ہیں آقا جی پھر ایک بار اور بتا دیا جائے پھر کس کا؟ آقا فرماتے ہیں تمہارے باپ کا. اب یاد رکھیے گا 4 بار اس نوجوان نے پوچھا, آقا نے 3 بار ماں کا نام لیا, 1 بار باپ کا نام لیا. آج
आला हजरत सरकार से पूछा गया, हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने जवाब में हदीस का तर्जमा ही लिख दिया, कहा मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि सरकार ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है, तो 100 को 4 जगह बांटोगे तो 3 हिस्सा माँ का बनता है और 1 हिस्सा बाप का बनता है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, फिर कहा उसके बाद बचे तो बीवी को, उसके बाद बचे तो बच्चे को, फिर उसके बाद भाई बहन को, फिर उसके बाद पड़ोसियों को, फिर उसके बाद रिश्तेदारों को, फिर यतीमों गरीबों को। आज हम जहाँ पर जीवित और जिंदा है, ईमानदारी से बताना, कितने लोग हैं जो कमा कर माँ को देते हैं, कितने लोग हैं जो कमा कर वालिद को देते हैं। आज 99% नौजवान अपनी कमाई के खुद मालिक है, माँ को मिले न मिले कोई फिक्र नहीं, बाप बेचारा गुर्बती की जिंदगी गुजारे कोई फिक्र नहीं, तेरा बाप चाय की होटल में मुहताज है, तुम्हारी माँ आज दवा की तो खोद के लिए तरस रही है, तो मुंबई में बीवी बच्चों के साथ ऐश कर रहा है। मैं ये नहीं कहता बीवियों को मत खिलाओ, बल्कि इस्लाम ने बीवियों को हक दिया है, कहा जो खाओ बीवियों को खिलाओ, जो पियो बीवियों को पिलाओ, जो पहनो बीवियों को पहनाओ, लेकिन माँ को छाप कर नहीं, बाप को नाराज करके नहीं। याद रखिएगा खूब गौर से जिंदगी में इन बातों को। साहब आज हम जहाँ पर जैसी तरबियत करेंगे हमारी औलादे वैसे ही बातें सीखेंगी। याद रखिएगा ये जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सब स्कूल में पढ़ते हैं, जब ये स्कूल में पहले दिन पहुंचते हैं क्लास टीचर कहता है बच्चों याद रखना, जब क्लास में तुम बैठे हो कोई टीचर क्लास में इन करे तो पहली जिम्मेदारी है देखते ही, जोर से बोलो, देखते ही खड़े हो जाना। ये स्कूल का पहला दर्स है, स्कूल का पहला सबक है। ऐसे ही जो ही हम जलसे में पहुंचते हैं तो हमारे उलमा कहते हैं बहुत बड़े आलिम आ रहे हैं, सब खड़े हो जाओ, बहुत बड़े पीर आ रहे हैं, सब खड़े हो जाओ। तो कोई बच्चा स्कूल में बैठता नहीं है, कोई शख्स बड़े आलिम को देखकर यहाँ पे बैठता नहीं है। उलमा भी खड़े, आप भी खड़े। आओ जरा सरकार की बारगाह में चलते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चलते हैं। वो नबी मेराज की शब अक्सा में जब आका की सवारी पहुंची तो हजरत आदम भी खड़े हो गए, हजरत इब्राहिम भी खड़े हो गए, हजरत मूसा भी खड़े हो गए, हजरत ईसा भी खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह सब खड़े हैं। हजरत आदम कौन है? हमारे भी बाप है, तुम्हारे भी बाप है, हम सब के बाप है, सरकार के भी बाप है। हजरत आदम ने एक बार भी नहीं कहा मैं क्यों खड़ा हो जाऊं, आने वाला तो मेरा शहजादा ही आ रहा है। हजरत इब्राहिम ने एक बार नहीं कहा मैं क्यों खड़ा हो जाऊं, आने वाला मेरा शहजादा ही आ रहा है। नहीं, हजरत आदम कहते हैं ए दुनिया वालों याद रखना ये हमारा किरदार है कि हम आज मस्जिद अक्सा में मुक्तदी बनकर आए हैं और मुस्तफा जाने रहमत हमारे इमाम बनकर आए हैं। सारे अंबिया सरकार की ताज़ीम में इसलिए खड़े हैं कि सरकार आज इमामुल अंबिया बनकर गए। अब याद रखिएगा इमाम के लिए खड़ा होना ये अंबिया की सुन्नत है, तो याद रखिएगा। अब याद रखिएगा सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला ही इमाम नहीं होता, वो मस्जिद का इमाम है और बाकी जो उलमा है ये कौम के इमाम है, ये कौम के रहबर है। इसलिए जब आपकी जमात का कोई आलिम नजर आए फौरन ताजीम के लिए खड़े हो जाइए, ताकि बच्चे जाने, आप बूढ़े जाने, सबको ये पता चले ये आलिम है, इनका एहतराम ये है। अब जरा आगे बढ़िए, जिस नबी की ताजीम के लिए सारे अंबिया खड़े हैं वो नबी एक जंग के बाद सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ है। इतने में एक मुकद्दस खातून, एक औरत मुस्तफा जाने रहमत से मिलने के लिए चली आ रही है। जो ही आका की बारगाह में पहुंची मुस्तफा जाने रहमत की नजर पड़ गई। जो ही आका की नजर पड़ी आका मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए सहाबा भी खड़े हो गए। जो ही वो मुकद्दस खातून करीब पहुंची आका ने अपनी चादरे मुबारक को उतारा, जमीन पर बिछा दिया, कहा आप यहाँ पे बैठ जाएं। सहाबा अर्ज गुजार हुए या रसूल अल्लाह मामला समझ में
में नहीं आया, सारी दुनिया आपकी ताजीम के लिए खड़ी होती है, मगर ये कौन मुकद्दस खातून है जिनकी ताजीम के लिए मेरा पैगंबर खड़ा है। मेरा पैगंबर किसी के लिए खड़ा नहीं होता, मगर आज इस औरत के लिए आका खड़े हैं। कौनैन के ताजेदार मुस्कुराए, कहा मेरे सहाबा तुझे नहीं पता, तेरा पैगंबर जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है, यह औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ अम्मा हलीमा है, जिनकी ताजीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, आज हमें नबी के नाम का नारा याद है, आज हमें नबी के नाम का झंडा याद है, आज हमें नबी के नाम का मिलाद याद है, मगर नबी का किरदार क्यों याद नहीं है, नबी का कैरेक्टर क्यों याद नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आका तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हैं, क्या आप भी कभी अपनी माँ के लिए खड़े होते हैं? क्या आप भी कभी अपने वालिद के लिए खड़े होते हैं? क्या आपने भी कभी अपनी माँ के लिए बिस्तर लगाया है? क्या आपने भी कभी अपनी माँ के लिए चादरें बिछाई है? नहीं बिछाई तो आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, ऐ मेरी कौम के शहजादों, घर जाना, बगल में तेरी बीवी बैठी हो, तेरे बच्चे बैठे हो, तुम बैठे हो, याद रखना आज के बाद माँ नीचे बैठे तुम ऊपर न बैठना, माँ जहाँ पे खड़ी हो तुम न बैठना, बाप जहाँ पे बैठा हो वहाँ बराबरी में तू न बैठना। तू वक्त का आलिम हो सकता है मगर बाप के रुतबे का नहीं हो सकता, तू वक्त का इंजीनियर हो सकता है मगर बाप के रुतबे का नहीं हो सकता, तू वक्त का मुखिया दुखिया अमीर कबीर हो सकता है मगर बाप के रुतबे का नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो इंसान को माँ बाप के मुकाबले में ला करके खड़ा कर दे। इसलिए याद रखना, बगल में बीवी भी बैठी हो, बच्चे भी बैठे हो, और तेरी बूढ़ी माँ तेरे सामने आ जाए, फौरन ताजीम के लिए खड़े हो जाना। बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। तेरी बीवी और बच्चे कहेंगे कल तक माँ बाप की इतनी इज्जत नहीं करते थे, आज इतनी इज्जत क्यों कर रहे हो? कहना पगली कल तक नहीं जानते थे, आज सैयद बहादुर शाह रहमान रिजवान के नाम पे महफिल सजी थी, आज हमने उस महफिल में जान दिया। ऐ मेरी बीवी और मेरी शरीके हयात, तुम और हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो नबी तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए, और मैं तो जिस माँ के लिए खड़ा हूँ, इसलिए दूध बाद में पिलाया है, पेट में 9 माह खूने जिगर पहले पिलाया है, उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया है, नंगे जिस्म को मेरे कपड़ा पहनाया है, अपना दूध पिला करके जवान किया है। आज मैं जिस बाप के लिए खड़ा हूँ, उस बाप ने पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर हमें जवानी बख्शी है, हमें इस मकाम तक पहुंचाया है। तो नबी मदीने में दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हैं, हम उनके गुलाम अपने घरों में माँ बाप की ताजीम के लिए खड़े हैं।